एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਏ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਲਤਾ, ਕੰਚਨ ਬਾਲਾ, ਰਾਮਸ਼ਰਨ ਗੁਪਤਾ, पूनम गुप्ता, संगीता रानी, दिनेश कुमार मित्तल, दिवाकर गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, राजन गुप्ता, दीपाली गुप्ता, रजत गुप्ता, भव्य गुप्ता, जियान, राघव, गाम्या, रियान ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਸਿੰਨੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲਸੂੜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ 13 ਮਾਰਚ 1936 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, राम प्रकाश गुप्ता, दर्शना मित्तल, प्रेमनाथ मित्तल, शांति गोयल, कृष्ण कुमार गोयल नाल गहरा मोह सी। आप जी ने अपनी BA तक दी एजुकेशन हासिल की। उपरंत आप जी ने अपने पिंड लसूड़ी विखे ही करियाने दा कारोबार शुरू किया। सन 1978 विच आप जी ने लसूड़ी विखे ही अपनी आड़त दा कारोबार शुरू किया ਅਤੇ ਸਨ 1988 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆੜਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰਨਾਥ ਚਮਨ ਲਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਜਰਨਲ ਮਿਲਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਨ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਲਰ AN ਐਗਰੋ ਫੂਡਸ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1959 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਏ, ਕੰਚਨ ਬਾਲਾ, ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਭਵਯ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਆਨ, ਰਾਘਵ, ਗਾਮਿਆ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। जगत का जीवन जानो राम, जगी ज्योति जागल मान। राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन हीन जथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक, इसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने राम नाम बिन तोते। राम नाम बिन वाद विचार, ब्रह्म करे प्रचार। राम नाम की पकड़ बिना जन मन में अंधेर रहे। इसमें है मम नाम सुमाला फेर। राम राम बज कर श्री राम, करिए नेत तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो बर्तन्याल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जपते कर्म रंग घाट। तांजब राम नाम की टूटे, मन का है राम नाम का ऐसा। चिंता मन भारत मन जय
पार। राम कृपाल में अंत संभाल। राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग। राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म। राम कृपा संजय सतधर्म। राम नाम को मन में बसाना। सुबह राम कृपा कह पाना। मन में राम धुन जब फिरे। राम कृपा तब ही अवतारे। रहूं मैं नाम में होकर लीन। जैसे जल में मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं। परम प्रभु को भी तर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान। भजते राम कृपा का निदान। राम कृपा उस जन में आवे। जिसमें आवे राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी। काल व्याध जार लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद। राम नाम दे रहत विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता। ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। प्रभु प्रसाद पावे वे प्राणी। राम राम जपे अमृत बाणी। औषध राम नाम की खाइए। मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान। लेता अमल अचल निर्माण। राम राम धुन गूंज से बाबे जाते भाग। राम नाम धुन जान से सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम मादान। करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा। भक्ति प्रेम अनुराग से रोका। पर हूँ तेरा ले लिए तेर। चरण पड़ेगे रखियो में। अपना आप विरध विचार। दीजिए भगवान नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे। रोते घर में अग्न हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक। कर गए राम नाम ले। तर गए धृति धारणाहीन। धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप। हुए असले मलया पाप। राम नाम मन मुख में बोले। राम नाम भीतर बट खोले। राम नाम से कमल विकास। होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे। सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे राम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवेरा। ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। राम जी के चरणों में। प्रभु जी के चरणों में। राम जी के चरणों में। प्रभु जी के चरणों में। आ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। ये जग सपना है कोई नहीं अपना है। ये जग सपना है कोई नहीं अपना है। राम जी को अपना बना। बैठ राम जी के चरणों में। राम जी को अपना बना। बैठ राम चरणों में। आ मन बैठ जरा राम जी के चरणों में। आ मन बैठ जरा राम जी के चरणों में। राम जी के चरणों में। प्रभु जी के चरणों में। राम जी के चरणों में। प्रभु जी के चरणों में। सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई। सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई। थोड़ा तो
को दुनिया बना राम जी के चरणों में, राम जी को दुनिया बना राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में। करुणा की एक नजर हम पर पड़ आए, करुणा की एक नजर हम पर पड़ आई। तेरा ही उद्धार होगा राम जी के चरणों में, तेरा ही उद्धार होगा राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा राम जी के चरणों में। राम जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਡਿਤ ਮਾਧਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तं हम न जाने। शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्री विष्णुपादं प्रणमामि भक्त्या सर्पासनं दुःखहरं खगेशं मनोहरं वायुस्मानवेगं छन्दोमयं ज्ञानघं प्रशान्तनं विष्णुपुत्राय शान्ताय बलबुद्धियुताय च पक्षीन्द्राय वेगाय श्री गरुड़ाय नमो नमः। ऐनादिनिधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष वेद मुक्ति प्रदो भव। अक्षिपीत पीत संकासं पीत वस्त्र समुच्यतं ये नमस्यन्ति गोविन्दं तेषां न विद्यते भयम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु प्रेमी भक्तजनों, नगर निवासी माताओं बहनों, रिश्तेदार गोती नाती, जितने भी यहाँ सज्जन पधारे हैं, आज हम शोकमयी सभा में उपस्थित हुए हैं क्योंकि आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। इस संसार में जो भी आया है उसको जाना है, लेकिन जाने जाने में फर्क होता है। एक के लिए विमान बनाया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, और एक उसका पता ही नहीं होता कि इसका वाली वारिस कौन है। उसके जाने पर लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ ये चला गया, अगर और जीता तो और कितनों को तंग करता, कितनों के ऊपर जुल्म करता। तो जाने जाने में फर्क है। इंसान वही होता है, लेकिन फर्क कर्मों का है। एक इंसान शुभ कर्म करता है तो वो पुण्य आत्मा कहलाता है, एक बुरे कर्म करता है तो वो पाप आत्मा कहलाता है। लाला चमनलाल जी लगभग 85 वर्ष की आयु यहाँ अपने जो कर्तव्य कर्म उन सभी की पूर्ति करते हुए यहाँ संसार के जो कर्म होते हैं इंसान के, उन कर्तव्यों को पूर्ण करते करते भगवान के चरणों में लीन हुए। अपने परिवार में ही उन्होंने अपने श्वासों को छोड़ा, वरना तो न जाने कहाँ मृत्यु आ जाए कोई पता ही नहीं चलता। कई ऐसे भी होते हैं कि उनके बारे में पता ही नहीं चलता कि वो जीवित है या मर गए हैं, उनका पिन पितर भी कुछ नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अनेकों जन्मों के किए हुए पुण्य और पाप हमारे साथ में हम लेकर के आते हैं। उन कर्मों के मुताबिक ही मनुष्य को दुख और सुख प्राप्त होते रहते हैं। जो सज्जन है, जो ज्ञानी है, विद्वान है, जो पंडित हैं, वो कभी सुख में हर्षित नहीं होते और दुख में कभी वो नाराज नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे ही ये कर्म मेरे सामने हैं। अगर मैं पुण्य भोग रहा हूँ तो मेरे पुण्य जो किए हुए पुण्य हैं, जो किया हुआ दान है, वो समाप्त हो रहा है। और यदि मैं बुरा टाइम भोग रहा हूँ तो वो मेरा पाप खत्म हो रहा है। तो इसलिए हमारे किए हुए हम भोग रहे हैं, इसमें सुखी होने की या दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी शास्त्र हमें शिक्षा देता है कि भाई रोता कौन है? रोता तो वही है जो अज्ञानी है। जैसे कि बालक होता है, वो बालक अज्ञानता के कारण रोता है। जैसे कि गर्भ में, माता के गर्भ में जीव वो रोता है अज्ञान के कारण, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तब वो भगवान से स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, भगवान मेरे को एक बार इस कुंभीपाक नरक से बाहर निकाल दो, बाहर जाकर के आपका ही भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, सुमन करूंगा। लेकिन वो कहता तो है, लेकिन जब बाहर आता है 10वें महीने में
प्रसूति की वायु से एकाएक फेंका हुआ वो जीव अंदर का जो ज्ञान था वो लुप्त हो जाने के कारण क्वाहम करता है, यानी रोने लग जाता है। वो किए हुए वादे भगवान से सब भूल जाता है और फिर आकर के बचपने के दुख को भोगता है और जवानी में आकर के फिर आसुरी संपदा, दंभ, दर्प और अभिमान में इनमें फंस करके आयंत दुर्लभ मनुष्य का जन्म हाथ में आए हुए अमृत के घड़े की तरह नीचे गिरा देता है। जैसे अमृत का घड़ा फूट जाता है, ऐसे ये शरीर भी एक न एक दिन गिर जाता है और दोबारा फिर वो 84 लाख योनियों में चला जाता है। मनुष्य अपना भला आप ना करेगा तो और कौन उसका भला करेगा। हम जाते हैं, कहते हैं कि हमारे ऊपर, महापुरुषों को कहते हैं हमारे ऊपर कृपा करो, भगवान से कहते हैं हमारे ऊपर कृपा करो, माता पिता से कहते हैं कृपा करो। यदि हम माता पिता के अनुसार चले, यदि गुरुओं के अनुसार चले, भगवान के कहे अनुसार, शास्त्रों के कहे अनुसार चले, तो हमें दुख भोगना ही नहीं पड़ता। अगर दुख आता है हमारे कर्मों के मुताबिक तो हमें सहन शक्ति आ जाती है उस दुख को भोगने की। शास्त्र हमें सहन करने की शक्ति देते हैं। संतों से एक बार हमने कहा कि महाराज आपके ऊपर दुख कलेश नहीं आते, वो कहते हैं सब कुछ आता है, सर्दी भी लगती है, हमें गर्मी भी लगती है, लेकिन हम उसको सहन करते हैं। हमारे अंदर सहन करने की सामर्थ्यता है, हमने अपने शरीर को साध लिया है। लेकिन आप लोग थोड़ी सी बात हो जाए, गर्मी ज्यादा हो गई तो भगवान ने गर्मी ज्यादा कर दी, ठंड हो जाए तो भगवान ने ज्यादा ठंड कर दी। लेकिन भगवान हर एक के मुताबिक चल नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि मैं अपने बनाए नियमों के मुताबिक ही चलता हूँ और मैं खुद भी चलता हूँ और औरों को चलाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए मैं राम जैसे अवतार में आकर के आप सभी को, हम सभी को प्रेरणा देते हैं भगवान। तो हमें भगवान के बताए मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन जो भगवान करते हैं वैसा करने की कोशिश मत करना भाई। कहीं ये कह दो कि आपने कहा था। भगवान जो कहते हैं वो करना चाहिए, भगवान जो करते हैं वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वो कर सकते हैं वो करने में हम समर्थ नहीं हैं। तो इसलिए बड़े प्रेम से भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, क्योंकि जो दिव्यगत आत्मा आज से 15 रोज हमारे बीच में थी, वो इस संसार को छोड़ करके, क्योंकि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, यहाँ पर जो भी आया है उसको मर करके जाना है। एक कर्म करके हमने ये शरीर पाया और इस शरीर के द्वारा कर्म करके अगला जो आने वाला शरीर है वो अभी बन रहा है हमारा। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा ये शरीर छूटेगा और वो शरीर हमें प्राप्त हो जाएगा। हमें का मतलब आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। जैसे घर में रहने वाला एक प्राणी उस घर के जल जाने पर दूसरे घर में प्रवेश कर जाता है, इसी प्रकार ये आत्मा जो है इस शरीर के छूटने पर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग देते हैं, नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा वस्त्र की तरह इस शरीर को बदलता है। लेकिन शरीर मिलता है हमारे अपने कर्मों के द्वारा। न जाने क्या क्या बन करके 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के बाद हमें मनुष्य की योनि मिली है। और ये मिली है हमारे कर्मों के मुताबिक, अच्छे कर्मों के मुताबिक ये योनि मिल तो गई, लेकिन इसका सदुपयोग कोई कोई करता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। इस संसार में आकर के काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में फंस करके अयंत दुर्लभ मनुष्य शरीर को हम ऐसे ही गवा देते हैं। अरे 100 साल का जीना ही कम है और 100 साल में से 50 साल की आयु होती हैं, रातें होती हैं और 50 साल के दिन होते हैं। उसमें से भी 50 साल में से भी बचपना और बुढ़ापा और बीमारियों का जो समय निकाल दिया जाए तो शेष थोड़ा सा समय बचता है। अगर उस समय का हम सदुपयोग नहीं कर सकते, भगवान का भजन नहीं कर सकते, तो हमने मानो अपने आप से दुश्मनी कर ली है, हमने आप के हम दुश्मन बन गए हैं। इसलिए अपना डॉक्टर आप होता है इंसान। कई ऐसे भी कर्म होते हैं जो हम किसी को नहीं बताते, ये सोचते हैं कि ये किसी को पता ही ना लगे। तो भाई उन पापों की शांति के लिए
अगर कोई उपाय है इस संसार में तो वो भगवान का कीर्तन है। बड़े भारी पापों का प्रायश्चित एक ही है और वो भगवान का कीर्तन है। सुबह शाम अगर आप कीर्तन कर सकते हो, लेकिन अकेले घर में बैठ करके कीर्तन करना बहुत कठिन है। अकेला आदमी ध्यान लगा सकता है, अकेला आदमी माला का जाप कर सकता है, लेकिन संगत के साथ में बैठ करके कीर्तन हो जाता है। किया जो जाए तन के द्वारा उसको कीर्तन कहते हैं, और जिस तन के द्वारा जो कर्म होता है उसका हमें भोग भोगना पड़ता है। इसलिए जो बड़े भारी पाप किए हैं हमने, हमारे द्वारा हो गए हैं अनजाने में, उनका भी प्रायश्चित एक ही है और वो है भगवान का भजन। इसलिए भगवान का भजन हमें करना चाहिए। मैं एक दो शब्दों के द्वारा मैं आपके सामने भगवान की साधु संतों की वाणी रख रहा हूँ। आप बड़े प्रेम से उसे श्रवण करेंगे। करे जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। करे जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अगर मुक्ति चाहिए तो भगवान का भजन निष्काम भाव होकर के करना चाहिए। अगर भगवान से हमें कोई इच्छा पूर्ति करवानी है तो संकल्प के द्वारा भगवान का भजन करना चाहिए। अगर पापों की शांति के लिए भगवान का भजन करना है तो संगत के साथ में बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। भजन करने से, कीर्तन करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग में एक नाम का ही आधार है। एक भगवान के नाम का सुमन करने से पापों का खात्मा हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। करे जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे बाबा ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। अरे भैया ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। तेरा आगे लिखा देखो कि ये शरीर जो है यही हमारा क्या है, आत्मा का मकान है, और ये किराए का मकान है। एक दिन ये छूट जाएगा। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, जो लेटे सेज फूलों पर। ये होगा एक दिन मुर्दा, इसे कीड़ों ने खाना है। ये होगा एक दिन मुर्दा, इसे कीड़ों ने खाना है। करे जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे बाबा ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। इसमें लिखा कि ये शरीर कीड़ों ने खाना है। मरने के बाद शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं। वो अवस्थाएं क्या हैं? अगर इस मुर्दा शरीर को किसी निर्जन स्थान में रख दिया जाए तो वहां पर जाकर के कई दिन, 2-4 दिन बीतने के बाद में इसमें जीव पैदा हो जाते हैं। इस शरीर में से ही जीव पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं।
और वो ही कीड़े इस शरीर को खा जाते हैं और इस शरीर की मिट्टी बन जाती है। दूसरी अवस्था, यदि इस मुर्दा शरीर को कोई हिंसक पशु खा ले, कोई जीव जंतु हिंसक पशु खा ले, तो इसके पेट में जाकर के विष्ठा बन जाती है, गंदगी बन जाती है। और तीसरा, आप सभी को मालूम है, यदि इसको अग्नि के अर्पण कर दिया जाए तो अग्नि के अंदर जल करके इसकी राख बन जाती है। तो ये क्षणभंगुर शरीर है और 3 अवस्थाएं इसको मिलती हैं मरने के बाद में। तो भाई शरीर के ऊपर कितना जीते जी मनुष्य गर्व करता है, अभिमान करता है, मैं और मेरा। ये कहता है कि ये शरीर तो मैं हूं, इस शरीर के द्वारा बना हुआ ये सारा सिस्टम है, जो भाई बंधु रिश्ते नाते गोते नाती भाई बंधु, और ये मकान जो है, ये कारोबार जो है, ये मेरा है। तो मेरा मेरा करते हुए को, मैं को करती हुई बकरी को एक दिन काल रूपी भेड़िया आकर के खा जाता है। इसलिए केवल भगवान का भजन। लिखा, महल ना साथ जाएंगे ना जाए बाग बागीचे, महल ना साथ जाएंगे ना जाए बाग बागीचे, किसे ना संग जाना है ये मतलब का जमाना है, किसे ना संग जाना है ये मतलब का जमाना है। करे जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। अरे बाबा ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। करे जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। यहाँ जो आपने हमने बनाया है, हम सभी को मालूम है ये साथ में जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर दान करें, पुण्य करें, कि लिखा है कि नाशवान शरीर के द्वारा नाशवान धन का दान करके पुण्य संचय कर लेना चाहिए, क्योंकि न जाने शरीर कब ये प्राणों से रहित हो जाए। इसलिए जितना हो सके जेन केन विधि दान करें, कल्याण जैसे कैसे भी दिया जाए, हमारा कल्याण दान नहीं करना है और कोई तरीका नहीं है। लिखा, महल ना लगाकर पीत विषयों से जन्म हीरा गंवाता है, लगाकर पीत विषयों से जन्म हीरा गंवाता है। मिलावन मोल ये हीरा जो फिर ना हाथ आना है। मिलावन मोल ये हीरा जो फिर ना हाथ आना है। करे जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। अरे बाबा ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। और दान भी लिखा है कि अभिमान करके दिया जाए तो उसका कुछ पुण्य मिलने वाला नहीं है। इसमें गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर राजा होकर के भूमि का दान ना करे तो नरक में जाता है, एक बात। दूसरा, अगर राजा होकर के अभिमान से पृथ्वी का दान करे तो भी नरक में जाता है। इसलिए निरअभिमान होकर के दान करना चाहिए। और साधु संत महात्मा, उदाहरण दिया कि साधु संत महात्मा धनहीन होने के बाद भी मुक्ति को प्राप्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। यदि श्रद्धा और विश्वास, उनका नाम है शंकर भगवान और माता पार्वती, अगर इकट्ठे नहीं होंगे, श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी, तो वहां पर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि नहीं आएंगी, वहां पर शुभ और लाभ नहीं होंगे। इसलिए अगर हमें इन चीजों की भी आवश्यकता है तो मन में श्रद्धा और विश्वास रख करके भगवान का गुणगान कीजिए, भगवान के लिए दान कीजिए, क्योंकि दान करने से, पिछले जन्मों के दान करने से यहाँ हमें बहुत धन मिला। यही सोच करके दान करें कि अगर दान करेंगे तो आगे धन मिल जाएगा। अन्न का दान करोगे तो अन्न मिलेगा, और धन का दान करोगे धन मिलेगा। अगर जिस चीज की भी आवश्यकता आप समझते हो, उस चीज का दान शुरू कर दीजिए, आपको अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में मिलना शुरू हो जाएगा। तोड़ संसार के बंधन, लगा ले प्रीत ईश्वर से। तोड़ संसार के बंधन, लगा ले प्रीत ईश्वर से। बिना भगवान के बंदे, न तेरा कोई ठिकाना है। बिना भगवान के बंदे, न तेरा कोई ठिकाना है। करे जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे बाबा, ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। अरे भैया, ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। भगवान के भजन के बगैर हमारा उद्धार नहीं हो सकता। लाला जी हमारे मध्य, भगवान का रास्ता कोई भी हो, लेकिन धर्म का रास्ता होना चाहिए। लेकिन इनका परिवार देखिए, हरिनाम संकीर्तन मंडल के साथ में जुड़ा हुआ, साधु संत महात्माओं के साथ में ये परिवार जुड़ा हुआ है। शंकर भगवान का साथ में ही मंदिर है, भगवान के साथ में ही ये जुड़ा हुआ परिवार है। दान करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, और नित्य प्रति भगवान के संकीर्तन में जाता है ये परिवार। क्यों? क्योंकि इस शरीर के द्वारा कमाई करके अपना ही पेट भरना, ये तो पशु भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान दूसरों के बारे में सोच विचार करे, उनके लिए भी दान करे, पुण्य करे, परोपकार करे, तो उसको इंसान कहा जाता है। आपके सामने दो शब्द रख रहा हूं, बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। कभी सुख है, कभी दुख है,
इसी का नाम है जीवन। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कभी धोखा कभी ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कभी धोखा कभी ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। गलतियां तो इंसान का एक अंग है। गलती तो हो जाती है, लेकिन गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। प्रायश्चित कर ले, पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन प्रायश्चित भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन करके पापों से छुटकारा पा सकता है इंसान। लेकिन पैदा होने के बाद जवानी आई और काम कारों में आदमी इतना मशगूल हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि भगवान की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता, अपने आगे वाले जन्म की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। और जब ध्यान आता है बुढ़ापे में तो फिर समय बहुत बीत जाता है, क्योंकि जो आदमी करता है पूरी जिंदगी बुढ़ापे में वही याद आता है। क्योंकि अभ्यास जैसा करेंगे वैसा ही हमें बुढ़ापे में याद आएगा। माला फेरने का अभ्यास करोगे तो मंत्र का जाप हो जाएगा बुढ़ापे में। कीर्तन का अभ्यास करोगे तो बुढ़ापे में मंत्र कीर्तन भी हो जाएगा। लेकिन यदि कहें कि हम बुढ़ापे में अभ्यास कर लेंगे तो वो नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का एक नाम कहते हैं कि सारे पापों का प्रायश्चित कर देता है, लेकिन उसके अंदर एक क्या है, एक बहुत बड़ा परहेज है कि नाम जाप करने के बाद पाप कोई नहीं करना, तो एक नाम ही संसार से उद्धार कर सकता है। इतनी ताकत है भगवान के नाम में। लेकिन नाम भी जाप करता रहे और पाप भी करता रहे तो उद्धार कैसे होगा? दवाइयाँ भी हम लेते रहें और परहेज भी ना रखें तो कैसे हमारा उद्धार होगा, कैसे बेड़ा पार होगा? सबसे पहले जब बच्चा पैदा हुआ, जवानी आई, बुढ़ापा आया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु होने के बाद कहते हैं कि 5 पिंड दिए जाते हैं। एक जहां मृत्यु हुई, एक दरवाजे पर, एक आधे मार्ग में, एक चिता में और मरने वाले के हाथ पर रख दिया जाता है। एक जिस दिन चौथा किया जाता है, ये पिंड दिए जाते हैं। 10 दिन के 10 पिंड दिए जाते हैं, उनसे शरीर बनता है। ऐसा ही शरीर बनता है जैसा ये हमारा शरीर है। पुत्र पिंड दान करते हैं, 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर के अंदर बैठ करके वो आत्मा 13वें दिन यहाँ घर से चलती है और 1 साल में अपनी यात्रा पूरी करती है। धर्मराज के दरवाजे तक पहुँचने में 1 साल लग जाता है। वहां जाकर के ये शरीर, जो हाथ लंबा शरीर था, वो भी छूट जाता है और अंगूठे के पोरवे जितना
ये शरीर मिलता है, उसको यातना शरीर कहते हैं। उसमें बैठ करके यमलोक में जाता है और यमलोक में नाना प्रकार के जो हमने पाप किए हैं उन पापों को भोगने के लिए परवश होकर के, जैसा धर्मराज कहते हैं, चित्रगुप्त कहते हैं, वो यम के दूतों को आज्ञा देते हैं और यम के दूत उस पाप आत्मा को जो है, उस शरीर को, यातना शरीर को, जैसा जैसा उसने बुरा कर्म किया वैसा वैसा उसको फल देते रहते हैं। जब पाप उसको पूर्ण हो जाते हैं, कुछ पाप शेष रह जाते हैं, उन शेष पापों को लेकर के दोबारा मातृलोक में पैदा होता है। जैसे उसके पाप थे वैसा ही उसको शरीर मिलता है। कहते हैं कि सभी एक बराबर हैं। भाई एक बराबर तो सभी हैं, भगवान ने सभी को एक बराबर बनाया है, लेकिन कर्मों का फर्क है कि नहीं है। जैसे मनुष्य के कर्म हैं वैसा ही तो फल उसको मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधार लीजिए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता तं घ्राणं परमेश्वरः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भोगहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण। मंच पे विराजमान बहुत सत्कारयोग पंडित माधव जी ने गरुड़ पुराण की व्याख्या करके इंसान नूं पैदा होने तो लग के मरण तक, क्योंकि जिस वेले इंसान ने पैदा होना हुंदा परिवारां नूं, रिश्तेदारां नूं, सारिआं नूं नौ महीने पहलों ही पता लग जाता। पर जदों आखिरी समा हुंदा, मैं समझदा 9 सेकंड का टाइम भी पता नहीं लगता कि कदों बुलावा मुसाफिर का आ जाना। क्योंकि इंसान की, किसी ने कहा इंसान की मियाद कोई नहीं, कदों इंसान ने इत्थों चले जाना। बेशक चले आप सारिਆਂ ने जाना, पर जे मैं गुप्ता परिवार की गल करा, साडे पंजाब का नामवर परिवार किसी पहचान का मुहताज नहीं। 1 महीना पहलों भी इस परिवार दे विच शोक की लहर, साडे चाची जी उन्हों की डैथ हो गई सी। कर कुछ नहीं सकते, इंसान एक मुसाफिर खाना। बेशक अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके चले गए। जिस दिवंगत आत्मा की मैं गल करा, राधा स्वामी जी का बड़ी आस्था सी। बहुत लंबा समा आखिरी टाइम तक हरिनाम संकीर्तन मंडली ਨਾਲ जुड़े हुए, ठाकर द्वारा गौशाला ना, क्योंकि मैं संस्थावां दे जे ना लवां, शाहकोट की कोई ऐसी संस्था नहीं जिहदे नाल गुप्ता परिवार
ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ, ਦਿਵਾਕਰ ਜੀ, ਮੋਹਿਤ ਜੀ, ਭਵਾਨੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋੜ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦੇ, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਟੀ ਬਠਲਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੋੜਾ ਮਹਾਸਭਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ। ਹਰੀਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀ, ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਗਾਬਾ ਜੀ, ਕਪਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਥਾ ਭੈਣ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲਾਲਾ ਬਿਆਜਨਾਥ ਜੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅਸ਼ਮਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨਰੋਗ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਕਸ਼ਿਣੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਡਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਕੱਚਾ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਸੂਰੀ, ਪੂਨੀਆਂ, ਪਰਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੱਚਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪਵਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਸਰਪੰਚ ਢੰਡੋਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ।
निखिल शर्मा जी सीए साहब, हरपाल मैसन जी प्रधान स्वर्णकार यूनियन, सरदार गुलजार सिंह जी थिंद साबका चेयरमैन मार्केट कमेटी शाहकोट, जतिंदर बल्ला जी साबका MC, सुखा ढेसी जी साबका MC, सरदार बलवीर सिंह जी चेयरमैन मार्केट कमेटी शाहकोट, प्रेस क्लब वालों शोक मत आया। अशोक जैन जी SS जैन सभा शाहकोट वालों शोक मत आया। कोल्ड स्टोरेज एसोसीएशन वालों सरदार अजमेर सिंह जी खालसा, करण अरोड़ा जी वो भी शोक मता लैके आए। डॉक्टर अरविंदर सिंह जी रूपरा प्रधान गुरुद्वारा सिंह सभा शाहकोट वो भी शोक मता लैके आए। पिंदर पंडोरी जी आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज, राजीव सहगल जी उन्होंने वालों भी शोक मता आया। जशपाल जी साबका चेयरमैन मार्केट मंडी बोर्ड मार्केट कमेटी उन्होंने वालों भी शोक मता आया। तरसेम अग्रवाल जी सीए साहब, सीनियर एडवोकेट अशोक मित्तल जी, खत्तरी सभा के चेयरमैन विनय रेहान जी, राम प्रकाश जी कपूरथला तो, प्रेमनाथ जी एशियन साइकिल वाले लुधियाने तो, किशन लाल जी बंगा तो, श्री पवनपुरी जी साबका प्रधान नगर पंचायत शाहकोट, सारे कौंसलर साहबान नगर पंचायत के साबका इत्थे बैठे धन्यवाद। संजम मैसन जी बीजेपी के मंडल प्रधान उन्होंने वालों भी शोक मता आया। जड़ियाँ संस्थावां दे शोक मते आए मैं अपने वालों सारे परिवार वालों उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। टाइम की क्योंकि बाप के उत्ते बोलण नूं जे माँ एक ममता का मुजस्मा, बाप भी एक जन्नत का दरवाजा हुंदा। बाप माँ की जिहड़ी परिभाषा वो भी वड्डी हुंदी, बाप की भी कोई छोटी नहीं। बोलण नूं बहुत सारे लफज हैगे, समा इजाजत नहीं दिंदा। धन्यवाद परिवार वालों सरदार हरदेव सिंह जी लाडी शेरोवालिया MLA हल्का शाहकोट, प्रधान जिला जलंधर देहाती कांग्रेस कमेटी, ये अहुदियां तो भी वखरा परिवार के नाल बहुत निघा रिश्ता वा, वो परिवार वालों धन्यवाद करनगे। उस तो पहलों इस दिवंगत आत्मा के प्रति परिवार ने कुछ दान राशि कढ़ी है, मैं उन्होंने नाम बोलूँगा। जे कोई संस्था का आगू इत्थे बैठा होए तो मेरे को लै सकता। श्री हरिनाम संकीर्तन मंडली जिथे सत्कारयोग चाचा जी का बहुत ज़्यादा एक लगाव सीगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर शाहकोट, डेरा बाबा मुरलीदास शाहकोट, धर्म स्थान डल्ला, राम शरण मंदिर शाहकोट, लसूड़ी मंदिर, महिला शक्ति संस्था शाहकोट, स्वामी सत्संकर राधा स्वामी सत्संकर शाहकोट, गुरुद्वारा सिंह सभा शाहकोट, स्वर्ग आश्रम मोगा रोड शाहकोट, स्वर्ग आश्रम नवा किला रोड शाहकोट, हनुमान मंदिर शाहकोट, रीत राग संत कुटिया लंगर कमेटी शाहकोट, श्री ठाकर द्वारा जोगा आश्रम नवा किला रोड शाहकोट, ठाकर द्वारा गौशाला नवा किला रोड शाहकोट। इन्हों के कोई नुमाइंदे हुण मेरे को ये लै सकते। हुण मैं बेनती करदा साडे इलाके का मान सरदार हरदेव सिंह जी लाडी शेरोवालिया MLA हल्का शाहकोट आउण ते परिवार के मैंबर होने नाते सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। गढ़ प्राण की हाजरी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग साढ़े बजुर्ग
ਲਾਲਾ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਤੇਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਆ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸ ਭੋਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਲਸੂੜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ। ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਣਕਾਂ ਜੋ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ, ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਆੜਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਵਾਕਰ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਰਾਮ ਸੰਗੀਤਲ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹਰੀਰਾਮ ਸੰਗੀਤਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆ ਕਮਾਈ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਜ ਮਾਇਨਾਜ ਹਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੂੰਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ
तो मैनू उस योग बनाया भी जे मैं इलाके की सेवा कर पाऊँ। ये छोटियां गल्लां नहीं हुंदियां, कल्ला बंदा कोई वड्डा नहीं जिन्ना चਿਰ बजुर्गों का भरावां का हथ ना होवे। अज मैं इस परिवार का मैंबर होने नाते कुलदीप जी नाल अज बहुत वड्डी दुख की घड़ी आ। दुख भी साझा करदा अपनी तिन्ने भैणां कंचन जी, कंचन बाला जी, पूनम जी, संगीता जी, तिन्ने ही भैणां ਜਿਹੜੀਆਂ अपने परिवारों के गल सटिया। किरपा सच्चे पातशाह की। अज अपने भरा कुलदीप वालों भैणां वालों तो साढ़े सत्कारयोग अंकल जी प्रेमचंद जी वालों अज धन्यवाद करने लिए भी खड़ा हुआ। सियाणिਆਂ की कहावत आ, खुशी वेले इकट्ठे होइए तो खुशी वधदी आ, दुख वेले इकट्ठे होइए तो दुख घटदा। अज तुसी सारे परिवार के दुख ਵਿੱਚ शरीक हो के परिवार के दुख ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ हाजिर होए हैं। धन्यवाद करा पवित्र गढ़पुराण जी का, जिन्हों ने सानू जिंदगी और मौत के सफ़र बारे शब्दों राਹੀਂ ज्ञान दिता। धन्यवाद पंडित जी का, जिन्हों ने सारिया रस्मां कीतियां। पिछले दिनों घर दे विच पाठ चलाया। अज अखीर आपां रस्म पगड़ी कर रहे हैं। धन्यवाद आई हुई सारी संगत का। एक एक कदम चलिया साडे परिवार के सिर मत्थे। तुसीं दुख दे विच शामिल होके दुख नूं घटाउण दा यतन कीता। तुहाडे आउण नाल परिवार अगलियां पलंघां पट्टण लई अगे वधूगा। परिवार तुहाडा सहयोग लैके हमेशा बजुर्गों के दसे हुए रस्ते ते चलदा रहूगा। हमेशा बजुर्गों का नाम रहिंदी दुनिया तक जिंदा रखने दे विच योगदान पाऊगा। मैनूं माण है अपने भरावां ते सारे परिवार ते। सो अखीर विच मैं अपने वालों, अपने शेरवालिया परिवार वालों, अपने सारे साथियों वालों परमात्मा के चरणों 'च बेनती करदा, सच्चे पातशाह परमात्मा साडे बजुर्गों नूं अपने चरणों 'च निवास स्थान बख्शिओ। सानूं ये दुख सहन का बल बख्शिओ। असी सारे उन्होंने हमेशा याद करके उन्होंने सोच को अगे ले जाने में योगदान पाते रहिए। सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखीर में मैं बेनती करदा, रस्म पगड़ी पंडित जी कर रहे हैं, उस तो बाद गुरु का लंगर तैयार है। सारे हाथ जोड़ के बेनती है, लोड़ मुताबक गुरु का लंगर छक के जरा इन्नी बेनती को प्रवान करो। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।